Hello everyone, welcome to this module. Today we are starting with reconstitution of partnership. Chapter है retirement of a partner. I hope you have seen all the videos, all the modules related to admission of a partner. In admission of a partner, we have done some theory part which is similar in retirement and death of a partner. So basically, if we have not seen admission ka videos, please see to it that you see all the videos related to this retirement of a partner so that for death of a partner chapter, it will be easier for you. Okay? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में जो भी थियरी मॉड्यूल्स है प्लीज अच्छे से देख लो. डेथ ऑफ पार्टनर में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, सिर्फ एक या दो एडजस्टमेंट हमें नया पढ़ना है डेथ ऑफ पार्टनर के लिए. सो विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का ये सब पार्ट्स है, भले वो एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो या डेथ ऑफ पार्टनर, जो आपके चैप्टर्स है आपको एज अ सिलेबस, ये सब पार्ट है ऑफ reconstitution. तो सबसे पहले we have to understand what is reconstitution. So here we go. Let us try to understand the definition of reconstitution of partnership. Here we go. The definition says, as per Indian Partnership Act 1932. I hope everybody knows about this act now. Section 4 of this act talks about the definition. So what does it mean? Partnership is a relation between two or more persons. Now it is which kind of relation? So obviously this is contractual relation as partners. Partnership is a relation, that is professional relation of partners between two or more persons. Now who have agreed, इनमें क्या है? Agreement है. Who have agreed, ये देखो कुछ ना कुछ agreement, contract बनेगा in between these partners to share what? Profits of the business. So they are agreeing to share profits. Obviously if there are losses, they're gonna agree on that as well to share those losses. So earning profits and sharing it. If loss, sharing it is agreed in agreed ratio. Whatever ratio they are agreeing, in that they will share their profits and losses of the business conducted jointly by all. It will be conducted jointly. All the partners will conduct the business activities or any of them acting for all. उनमें से कोई बाकियों के लिए काम करेगा. One partner working for others. So ये है definition of partnership. Okay, this is the definition of partnership. I'm reading it again. As per Indian Partnership Act 1932, partnership is a relationship between two or more persons who have agreed to share profits of the business conducted jointly by all or any of them acting for all. ये definition है partnership का, but further we have to understand what is reconstitution. Reconstitution क्या है ये समझ लेते हैं. So partnership firm का reconstitution मतलब एकदम simple. Any change in agreement of partnership is called as reconstitution of partnership. Existing agreement में अगर कुछ भी change हुआ तो that will be reconstitution. I'm again saying all this we have seen in admission of partner chapter as well, but those who have not seen admission of partner chapter उनके लिए ये वापस एक बार बता रहा हूं. But please see to it कि before गोइंग फॉर डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर आप ये पूरा थियरी ठीक से कर लो. नाउ द पार्टनरशिप डीड, जो भी पार्टनर्स में एग्रीमेंट होता है, इफ इट इज अ रिटन एग्रीमेंट, इट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्दर. चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट मतलब जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट था पार्टनर्स का वो कैंसल हो जाएगा. देखो ए और बी और सी का ये एग्रीमेंट है, देखो यहां पे दिया नेम ऑफ पार्टनर्स ए बी एंड सी. सी रिटायर्ड फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, सी अभी रिटायर हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये ए बी सी का जो एग्रीमेंट है वो हमें कैंसिल करना पड़ेगा और हमें नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा विथ ए एंड बी. सो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में चेंज हो गया. विद दिस एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड एंड द न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. ये है रिकॉन्स्टिट्यूशन.
ओके, द बिजनेस ऑफ द फर्म कंटिन्यूज। बिजनेस तो कंटिन्यू है, खाली ओल्ड एग्रीमेंट हमने कैंसिल किया और उसके बदले नया एग्रीमेंट बना लिया। सो इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट देयर इज एनी चेंज, इट विल बी नेम्ड एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो ये चेंज क्या क्या हो सकता है ये देख लेते हैं। फर्स्ट, इट कैन बी एडमिशन ऑफ पार्टनर, नया पार्टनर एंटर हुआ तो जो ओल्ड पार्टनर्स था उनका पहले एग्रीमेंट था, नया पार्टनर आने के बाद उनको वो एग्रीमेंट चेंज करके नए पार्टनर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा इन दैट एग्रीमेंट, सो दैट वुड बी रिकॉन्स्टिट्यूशन। फिर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जो चैप्टर अभी हम करने वाले हैं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, अभी अभी हमने देखा कि पहले ए बी और सी तीन पार्टनर्स थे, फिर ए और बी का एग्रीमेंट करना पड़ेगा अगर सी रिटायर हो रहा है, सो दैट वुड अगेन बी अ रिकॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलर फॉर डेथ ऑफ पार्टनर, पार्टनर इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, रिटायरमेंट में पार्टनर घर जाएगा डेथ में, so that is the change, but business point of view partner is going out, so same reconstitution hoga। change in profit sharing ratio of partners and change in capital contribution of partners, etc. So there are n number of changes we can have in partnership agreement, these are some of the examples। ये तीन example तो आपको straight away क्या है, as a chapter है 12th standard के syllabus में, बराबर है। so फिलहाल हमें सोचना है retirement के बारे में। Now let us try to understand, if there is a retirement of a partner, there has to be certain revaluations of assets and reassessments of liabilities। तो ये समझ लेते हैं एक बार what we should do about it। So revaluation of assets and liabilities of old firm, ये क्यों करेंगे, क्योंकि एक पार्टनर अगर बिजनेस से जा रहा है, he wants के जिस दिन वो जा रहा है, जिस दिन रिटायर हो रहा है, उस दिन का एक बार बिजनेस पोजीशन देख ले, एसेट्स का वैल्यूज कितना है, लाइबिलिटीज का वैल्यूज कितना है। इफ देयर इज एनी चेंज इन द बुक वैल्यूज, अगर एसेट में या लाइबिलिटी में प्रॉफिट या लॉस मिल रहा है तो वो रिटायरिंग पार्टनर का भी शेयर रहेगा उसमें। ऑन द डे ही इज रिटायरिंग तब तक हर एक में उसका भी शेयर रहेगा, सो वी शुड गिव दैट शेयर टू दैट रिटायरिंग पार्टनर, इसीलिए ये रिवैल्यूएशंस होता है। रिवैल्यूएशन मींस चेंज इन बुक वैल्यूज इफ नेसेसरी। बुक वैल्यू मतलब क्या, हमें पता है वैल्यू शोन इन लेटेस्ट बैलेंस शीट। रिटायर होने से पहले कोई बैलेंस शीट बना रहेगा प्रीवियस ईयर एंड में या जो भी, तो वो बैलेंस शीट में जो वैल्यूज है दोज आर बुक वैल्यूज। टिल द रिटायरमेंट का डे there can be certain changes in the values of assets and liabilities. Based on those changes we should understand whether there is a profit or loss on those assets and liabilities, and that we have to give to retiring partner as well। इसीलिए ये revaluations करना जरूरी है। देखो, due to changes in values of assets and liabilities of old firm, if any profit or loss, it must be distributed among all partners in old ratio। सभी पार्टनर्स को वो मिलेगा, लेकिन रिटायरिंग पार्टनर को हमें वो देके फिर उसको रिटायर करना है, ठीक है। जो भी कैलकुलेशन है उसके अकाउंटिंग जो क्लोज करने हैं वो ये देने के बाद ऑल पार्टनर्स विल गेट इट ऑब्वियसली, बट ऑल पार्टनर्स जैसे हम बोल रहे हैं उसमें रिटायरिंग पार्टनर भी तो आ गया, तो उसको भी तो हमें वो प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, राइट। सो हियर वी अंडरस्टैंड पीएसआर मतलब क्या, तो हमें पता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ वी नो दिस। मूविंग फॉरवर्ड, let us try to get some examples related to it। ये सेंटी हो गया थोड़ा सा, हाँ आ गया। on revaluation two possibilities, either increase or decrease। एसेट या तो बढ़ेगा या तो कम होगा। अगर सेम रहा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बढ़ा या कम हुआ तो हमें सोचना है, रीवैल्यू हुआ तो सोचना है, रीवैल्यू हुआ ही नहीं, सेम ही अब वैल्यू रहा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट में either the asset will increase or it will obviously decrease। Now, if asset is increasing, entry आएगा asset account debit, as asset increases we write asset account debit to revaluation account। Now, why revaluation account is created, I'll let you know। For decrease, asset कम हुआ तो asset को credit करेंगे, बराबर, और revaluation account को debit करेंगे। Here we prepare a separate revaluation account for these revaluations of assets and liabilities, and revaluation account exactly works as nominal account। मतलब डेबिट में रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिखेंगे एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट साइड विल राइट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। सो नाउ प्लीज अंडरस्टैंड अगेन, इफ एसेट इंक्रीजेस, एसेट बढ़ा तो प्रॉफिट है, गेन है, इसीलिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट किया। एसेट कम हुआ तो लॉस है, इसीलिए रिवैल्यूएशन डेबिट किया। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉस, credit all income gains। Okay, this we have done in admission of partner as well, but now again like I said, some of you might have directly come to this retirement wala chapter, so I am letting you know।
ये देखो, एसेट अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट एट देयर न्यू वैल्यूज एंड प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर्ड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट का नया वैल्यू जो रहेगा इंक्रीज होने के बाद वाला या डिक्रीज होने के बाद वाला, वो वैल्यू नए बैलेंस शीट में लिखेंगे, और जो भी इंक्रीज डिक्रीज का अमाउंट है दैट विल राइट इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। मूविंग फर्दर, नाउ अनरिकॉर्डेड एसेट, मतलब जो एसेट्स ऑलरेडी बिजनेस में एग्जिस्ट करते हैं बट ड्यू टू सम रीजन वी हैव नॉट रिकॉर्डेड इट इन आवर बैलेंस शीट। ऐसे वाले एसेट्स, दोज एसेट्स एग्जिस्ट इन बिजनेस बट नॉट शोन इन बैलेंस शीट, आर अनरिकॉर्डेड। Maybe they are written off or ignored due to any reason। वो क्यों नहीं दिखाए गए, उसका रीजन हो सकता है कुछ भी, वो इग्नोर हो गए या राइट ऑफ हो गए थ्रू आउट द ईयर। सो 10 साल के लिए एसेट हमने डिप्रिसिएट किया था तो 10 साल के बाद वैल्यू 0 हो गया, जो भी रीजन रहेगा। अभी क्या करना है, अगर ऐसे कोई एसेट्स है, जब हम रिवैल्यूएशन करेंगे वो एसेट भी आएगा सामने, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू हमें मिलेगा। फिर भले हमने बुक्स में उसको राइट ऑफ किया है, देयर हैज टू बी सम वैल्यू ऑफ दैट एसेट इन इट इज एक्चुअली फिजिकली प्रेजेंट इन बिजनेस। सो ये एसेट हमें वापस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। ऑन रिवैल्यूएशन सच एसेट्स आर ब्रॉट इनटू द बुक्स, इन अदर वर्ड्स देयर वैल्यूज आर इंक्रीज्ड। मतलब ही क्या है, एसेट इंक्रीज हो रहा है। अभी जो हमने दो देखा इंक्रीज डिक्रीज वाला, वैसे ही अनरिकॉर्डेड एसेट, इफ नाउ आई एम रिकॉर्डिंग दैट मींस एसेट इज इंक्रीजिंग, करेक्ट। So similar journal entry must be passed for increase of asset। जो हमने एंट्री देखा वही एंट्री पास करेंगे। Thus it's an increase in the value of asset, so asset account is debited and its profit, so revaluation account is credited। Look at it, concerned asset to revaluation। आप थोड़ा सा बैक जाके देखोगे तो भी आपको इंक्रीज वाले में यही एंट्री दिखेगा, asset to revaluation। Okay, so this is as good as increase in asset। Unrecorded asset now recording, that means we are increasing asset। Moving forward, देखो, such asset appears in new balance sheet, asset side and revaluation credit side। Again same, जो asset अभी लिखना है तो asset में लिखना ही पड़ेगा obviously asset side में, और revaluation credit में, क्योंकि ये profit है। Now, moving further, let us try to understand about liabilities। So जैसे asset के लिए दो possibilities, liabilities के लिए भी दो possibilities। क्या, या तो liability बढ़ेगा या तो liability कम होगा। अगर same रहा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पहले जो लायबिलिटी का वैल्यू था अभी भी वही है, तो वैसा ही रहेगा। इंक्रीज डिक्रीज हुआ तो रीवैल्यूएशंस का एंट्रीज करना पड़ेगा। सो रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज के लिए भी देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। इफ लायबिलिटी इंक्रीजेस, हम देखेंगे एंट्री क्या होगा। नाउ इफ लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग, लायबिलिटी शुड बी क्रेडिटेड। आई होप यू नो दोज रूल्स। ओके, सो अगर लायबिलिटी बढ़ता है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज लॉस, इसीलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट होगा। If liability decreases, business point of view से it is profit, so revaluation credit होगा और liability account debit होगा। देखो, liability decreases तो debit, and as liability is decreasing, it is profit for business, revaluation account is credit। ठीक है, so same increase decrease के लिए हमने देखा नया वैल्यू जो है, revalued amount जो है, will write it in asset side, and whatever may be the difference, जो increase decrease का वैल्यू है वो हम लिखेंगे revaluation account में। Look at this। Okay, now also we might have unrecorded liability। जैसे unrecorded asset हो सकता है, कोई liability लिखना भूल गए थे या जो भी रीजन से वो रिकॉर्ड नहीं किया था, now we should record it as partner is retiring, उससे पहले वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। So similarly, जैसे हम assets के बारे में सोचा हमने, वैसे ही liabilities के बारे में, due to some or the other reason it is not shown in your balance sheet, on revaluation such liabilities are brought into the books, in other words their values increased। जो लिखा नहीं था लायबिलिटी वो हमने अभी लिख दिया, मतलब ही वैल्यू क्या किया, इंक्रीज कर दिया। ओके, सो जो भी इंक्रीज इन लायबिलिटी का आपने अभी अभी जर्नल एंट्री देखा, सिमिलर एंट्री विल पास। इंक्रीज इन लायबिलिटी दैट मींस इट इज लॉस फॉर बिजनेस, सो डेबिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। लुक एट इट, एंड एज लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग, लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट होगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव। Also, such liability appears in new balance sheet liability side, क्योंकि जो नहीं दिखा था अभी दिखाना है ना, तो लायबिलिटी पे तो लिखना पड़ेगा ना, लायबिलिटी साइड पे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में एज इट इज लॉस। सो दिस इज ऑल अबाउट रिवैल्यूएशंस ऑफ एसेट्स, रीअसेसमेंट्स ऑफ लायबिलिटीज फॉर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। आगे भी बहुत सारा थियरी पार्ट हमें करना है, बट अभी के लिए इतना ही इन दिस मॉड्यूल। अब तक आपको जो भी समझा है प्लीज नोट इट डाउन वंस, खुद से लिखोगे तो ज्यादा अच्छे से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग व्हाटएवर यू हैव डन टिल नाउ।